Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Today we have a special episode, and joining with us is Akash, Pratik, and Vishnu. Vishnu and Pratik are joining from the United States, and Akash by joining from uh, Yamuna City. So, yes, it is great to have all of you, and uh, very interesting times, guys, in cricket world now with Asia Cup starting just 5 days from now, and we have the mother of all clash, India versus Pakistan, on 2nd September. Woohoo. So, guys, what's your feeling? Who will win India versus Pakistan? पहले तो आकाश भाई से पूछते हैं. He follows lot of Pakistan's channels, so he will know the opponent better. As क्या लगता है of आकाश now, भाई? what I see, Pakistan is really great team. Apart from emotions and everything, you see, पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप से लेके पाकिस्तान का बॉलिंग, दे आर टोटली बैलेंस्ड. उनका लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, बट देयर ओपनिंग, उनकी बॉलिंग, 11 नंबर का बैट्समैन आकर के मैच जिता रहा है, 6 बॉल पे 11 रन चाहिए, दे आर विनिंग देयर मैचेस. व्हाट यू से अबाउट देम? With a good quality attack, मतलब अफगानिस्तान का bowling attack is a good quality attack in ODI in T20. So Pakistan is looking a lot more balanced than India, जहां पर इंडिया में लोग इंजरी से बैक कर रहे हैं. So मुझे बहुत ही इस बार टाइट सिचुएशन लग रहा है. Yeah. Pratik, what's your take on this? No, I always feel in ODI format, we are maybe 60-40, we are higher. But I think the Afghanistan series has helped Pakistan prepare for this clash. So I would say 50-50. And even we have middle order problems. KL and Iyer hasn't played in a long time. Hardik Pandya is totally out of form. So it is very much balanced. Their fast bowlers are better, our spinners are slightly better. So everything seems equal for me, to me. So I'll go the other way around. I'll back India for this one. If they Like select always. if they select Axar in place of Shami, if they select Shami and they go with three fast bowlers, then I don't think it's a balanced squad for India. So इसलिए they have to have Axar in the team. So no point giving him ODI matches throughout in past 3-4 years and not playing him in this big game. So I mean, the logically it doesn't work out. So I also see that Shami didn't play any ODIs for a while. So I don't think they will bring him in directly into the team and give him bowling. I don't think But so. वो तो 2022 World Cup में भी they brought Shami just basis of 2 overs in a practice game where he destroyed Australia. So you know Shami has that But still he was backing of bowling management. T20s, right? IPL में bowling कर रहा था. IPL तो regular खेलता है. IPL में उसका form ठीक था, frankly speaking, and they won the cup. So that was the another reason. But in ODIs, it's been a while, and I'm getting a feeling that Rohit is a bit But you confident. can't replace Axar with Shami with Axar, man. Axar will replace. Who will he replace? He will replace Shardul. He will replace Shardul. I think there is a call between Axar and Shardul, not between Axar and Shami. I think it's not. I think It's not That's a what direct. Axar and Shardul are competition, and then Shami might be competition with Bumrah or Siraj, right? Shami, but- Bumrah and Siraj anyway are playing. Yes, Akash bhai, what you are saying? And what I see, Akshar is more batsman right now in the squad. He's more batsman. He's playing more like a batsman. His contribution is more in batting rather than his bowling. So if you But- go with he But will give you unfortunately, Axar hasn't performed in white ball cricket. He had an excellent series against Australia in the test matches. He saved us. He can definitely be a very good white ball player, but neither they try him up in the order nor he has performed. that's exactly where my point. They are not trying him. They are not doing the things which they need to do before World Cup. This is the more serious concern I'm having with Indian team right now. They are doing those kind of experiments which is not needed. Like in opening, Ishan Kishan is your opening batsman. You should be trying him into the opening, but that's not being tried. They are doing something else which is beyond my thought. They have given captaincy to Jasprit Bumrah. I'm not against that.
But if in Asian Games your captain will be Rituraj Gaikwad, then he needs to do captainship before the tournament starts. Jasprit Bumrah will never be captain in ODI World Cup or Asia Cup. So that's what my concern is happening, and I'm not liking that श्रेयांश actually भाई with आप Indian. क्या बोल रहे हो इंडिया पाकिस्तान में क्या आप इंडिया का 11 में क्या देखना चाहोगे मीन आप क्या बोलते हो नहीं, इंडियन 11 तो वही रहेगी यार। मतलब आपके शुभमन गिल और रोहित शर्मा टॉप, कोहली 3, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल 4-5, जाडेजा 6, हार्दिक पांड्या 7, फिर आपके बाद शार्दुल, अक्षर, और आपके शमी, कुलदीप यादव और सिराज, मतलब सॉरी बुमराह। शामी नहीं रहेगा, बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव, ये 3 स्पिनर हो गए 9, 10, 11 में। 8वें नंबर पे आपके या तो शमी या शार्दुल या अक्षर, इनमें से नहीं एक नहीं 8 नहीं नंबर पे आएगा। 3 सीमर कौन हो गए बुमराह सिराज और बस दो ही बोले दो ही बोला है कि मैंने। शार्दुल, अक्षर या शामी हो सकता है। हाँ हाँ, बाय द वे भाई दैट डिपेंडिंग हार्दिक अपॉन। पांड्या फुल 5 ओवर्स तो 25 ओवर हो जाएंगे पेस के अगर चाहिए तो देयर इज सीरियसली नो नीड फॉर अ थर्ड पेसर लाइक फुल पेसर। अच्छा सॉरी लेकिन मैंने इतना इसमें सोच नहीं। 11 में मैंने बुमराह कोई नहीं रखा है हाँ, बुमराह नहीं तो। he also put Shami actually. भाई शामी से मैं नहीं, इतना एक्चुअली में आई एम जस्ट हंग अप विद शामी लाइक द इंडियन टीम मैं भी नहीं ऑब्सेस्ड नहीं, हूँ शामी से रियलिटी ये नहीं नहीं, रियलिटी ये शिखर भी अब बीसीसीआई की सेलेक्टर्स की तरह हो गए कि किसी को भी हाँ, निकाल रहा है। नहीं मैं भी शामी से अब राहुल द्रविड़ ऑब्सेस्ड हो की गया हूँ तरह इंडियन भी। टीम की तरह शामी हर बड़ा टूर्नामेंट खेलना चाहिए भाई कैसे भी तो इसीलिए शामी को मैंने बुमराह के पहले ही रख दिया मतलब उससे ऊपर भी भाई नहीं तो ईशान का नाम भी डाल दिया पर बुमराह नहीं को तो नहीं अगर केएल राहुल नहीं खेलेगा नहीं तो केएल राहुल नहीं ईशान खेलेगा फर्स्ट मैच इट हैज बीन टोल्ड तो बाय रोहित तो शर्मा केएल राहुल विल नॉट ईशान तो प्ले द फिक्स है फर्स्ट फिर। मैच तो अगेंस्ट ईशान तो फिक्स पाकिस्तान है फिर। हाँ नहीं तो तो अगर ईशान केएल राहुल नहीं, अगर केएल राहुल फर्स्ट मैच नहीं खेल रहा है ना, तो ईशान किशन को तो इन्होंने बैकअप ओपनर की तरह लिया है, जो बोला था इन्होंने। तो कीपिंग कौन तो फिर करेगा फिर कीपिंग Then कौन तिलक करेगा वर्मा शायद भाई? सैमसन खेलना चाहिए because अरे ईशान is not fit for middle order. there is no wicket keeper right भाई तो कीपर कौन बनेगा नहीं कोई तो नहीं, कीपर कीपिंग कौन है? करेगा ईशान Then तो Ross Gill ईशान man, का वैसे तो भी गिल ने क्या ही किया वेस्ट इंडीज में। नहीं तो अगर फिर रोहित अगर और गिल में से अगर के कोई नहीं, तो फिर रोहित और गिल में से हो सकता है कोई आदमी नीचे आए। bro तो there is a talk गिल कि आएगा Virat might come on at fourth man तो if KL Okay. is not fit ओके सो यू आर सेइंग कि Yeah. अगर केएल राहुल इज नॉट फिट तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन विल बी डिस्टर्ब्ड एंड ईशान विल ओपन एंड समवन विल कम डाउन लाइक बट विराट क्योंकि मोस्टली ये लाइक्स टू एंकर तो उसको 4 पे भेजना भी doesn't make much sense. I don't know I was watching this ABD का blog हाँ एबीडी ने भी बोला है कि saying विराट that शुड कम एट 4 हाँ four आई it will be an ideal position for him but I don't think it will work out with his the way he plays the innings man It used to be ideal position for AB himself because he used to bat at 120 strike rate. Yeah. मेरा मेरा तो कंसर्न अभी भी इन लोग का मिडिल ऑर्डर में है कि 2019 में हम जिस जगह पे थे वेयर वी एट 2019 होल मिडिल ऑर्डर वाज डिस्टर्ब सेम पोजीशन हम 2023 में भी है वी आर इनटू एग्जैक्टली सेम पोजीशन कि अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है हु विल प्ले एट नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 यहाँ पे बहुत ही खिचड़ी पकी हुई है इंडियन टीम के साथ नहीं नहीं, वो अरे आकाश भाई वो बेसिकली वो तो इसलिए है ना, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि केएल राहुल फिट नहीं है। अगर केएल राहुल फिट है तो ये जो लिखा है ना टॉप 5-6, ये एग्जैक्टली यही खेलेगा पूरे वर्ल्ड। यही हाँ एग्जैक्टली टूर्नामेंट खेलेगा ये। तो मतलब वो और एक बात अजम्पशन के है चक्कर में हो कि रहा है गड़बड़। हम लोग ईशान अगर के टॉप साथ स्टक हो गए यार सच में हाँ। उसको एकोमोडेट करने के लिए पूरा ये ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इंस्टेड इफ दे हैड गिवन लॉन्ग run for a middle order keeper like Samson or any other it would have been a better kind of a situation for us in this big games यार ये ईशान के साथ उसको ऊपर मतलब भेजो ईशान को इन्होंने ईशान के साथ दो बेनिफिट हो रहे हैं ना, एक तो लेफ्ट हैंडर, वैसे इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स का अकाल है। तो लेफ्ट ईशान हैंडर को से हम एक्चुअली में लोग दो वजह बहुत से ज्यादा तरजीह मिल रही है, एक तो लेफ्ट हैंडर भी है। शिखर is very against लेफ्ट हैंड about that मुझे तो ये लेफ्ट हैंडर का बिजनेस बहुत बेकार लगता है भाई पता नहीं क्यों लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा को डेब्यू अच्छा यश तो लेफ्ट हैंडर ओपनिंग में नहीं चाहिए शिखर धवन नहीं चाहिए था आपको वो कैप्टन कर
कैप्टेंसी कर रहा था, वो आपको लेफ्ट हैंडर नहीं चाहिए था, बट आपको तिलक वर्मा जो डेब्यू भी नहीं किया है ओडीआई में, वो आपको चाहिए टीम में। तो ये मुझे लेफ्ट हैंडर का बात नहीं लगता है, मुझे भाई लगता धवन है को ले लिया तो आधा टीम तो ओपोनेंट्स ही हो जाते। शिखर, अगर दो प्लेयर्स स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो बॉलर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन लेफ्ट एंड राइट हैंडर्स आर बैटिंग टुगेदर, ही हैज टू चेंज हिज लाइन स्लाइटली। और इंडिया में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा जो लास्ट काफी दिनों से हो गया, मतलब शिखर धवन के बाद दे हैव नॉट ट्राइड, मतलब ईशान किशन को दे हैव गिवन चांस, बट ओपनिंग में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन ही नहीं देखा इन्होंने। दे हैव गॉन एंड स्टिक विद द सेम वे, बिल्कुल नहीं, ही जब सेम ट्रेंट तरीके बोल्ट और से। शाहिन शाह अफरीदी राइट हैंडर्स के अगेंस्ट एडवांटेज है, तो अभी रवि शास्त्री ने भी बोला है कि वी नीडेड शिखर धवन इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, एग्जैक्टली। ही ऑल्सो मेड या अ आप स्टेटमेंट। तो फिर लेफ्ट हैंडर आपको ओपनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आई थिंक, बट वहां पे नहीं एग्जैक्टली करके मिडिल ऑर्डर में आपको लग रहा है लेफ्ट हैंडर, मतलब आपको लेग स्पिनर से डर लग रहा है, बेसिकली आपको लग रहा है कि हमें सिर्फ लेग स्पिनर के लिए डर है, बट लेफ्ट आर्म पेस भाई बॉलर तो के लिए कोई वो डर नहीं है। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जैम्पा ने इंडिया की 12 बजाई थी चेन्नई में, है ना। और है तो डरने की बात नहीं है। इंडिया की स्पिन एबिलिटीज तो खराब हुई है इन लास्ट मतलब हाफ अ डेकेड और सो, एंड मतलब ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। आप देखो मिचेल सैंटनर खुद इंडिया को कितना भयंकर परेशान करता है, ईस्ट और टू डीप, इन लोगों ने इंडिया की 12 बजाई हुई है। मिचेल सैंटनर क्या, वो नेथन मैकुलम तक ने इंडिया के नाक में दम कर दिया था 2016 T20 वर्ल्ड कप में, और जो भाई मैं रवि भी ट्विटर में इतना नहीं थोड़ा था। देख रहा था आज का प्रैक्टिस करते हैं ना वार्म अप। हम्म आज कोहली पूरा बैटिंग स्पिन पे किया था साई किशोर एंड कुलदीप के बॉलिंग में। ही डिडंट फेस अप पेस अप टुडे। ही नोस कि हिज विकेट इज ऑलवेज गोइंग फॉर स्पिनर। सो आई थिंक जैम्पा के पास तो उसका नाम ऑलरेडी है। So he is very bad in ODI these days against a spinner man, even with wrist spinners like Rashid. ये सभी बॉलर्स के साथ he is very bad. हम्म यार मेरे को तो बहुत वियर्ड फीलिंग आ रहा है, जैसा होता है ना यूजली हर 2 साल में सडनली आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना पड़ता है, वैसे वियर्ड फीलिंग आ रहा है। ओडीआई तो खेलते नहीं है एंड सडनली इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलना है 1.5 महीने का। आई वॉज लुकिंग एट द आफ्टर ट्रेंड, मैं ट्रेंड देख रहा था ऑलमोस्ट 2011 years, से 15 के बीच में देयर वर 100 ओडीआईज इंडिया प्लेड, 15 से 19 में 86, एंड अभी लास्ट वर्ल्ड कप से अभी में दे ओनली प्लेड 56 मैचेस। तो लास्ट 3 years से सिर्फ T20 ही हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप, T20 एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, मतलब सिंस 2020 यही चल रहा है, तो सिर्फ T20। 50% हो गया ओडीआई मैचेस का परसेंटेज, और उसमें से भी 56 में से आई एम श्योर विराट ने 40 खेले होंगे, Faulty भी नहीं 40 भी भाई. नहीं खेले होंगे। It would नहीं be नहीं, like वही 10 or मैंने less. आज सुबह वीडियो में वही बोला कि वी एक्चुअली स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन 2023 फॉर 2023 एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप। ओके, शिखर धवन आपका कैप्टन था 2022 तक, ओडीआई कैप्टन शिखर धवन था मोस्ट ऑफ द टूर्स में, एक्सेप्ट फॉर Yeah. इंग्लैंड टूर जहाँ रोहित शर्मा कैप्टन था, मोस्ट ऑफ द टूर्स बट में शिखर प्रिपरेशन धवन भी क्या कैप्टन था। स्टार्ट करी, वेस्ट इंडीज में क्या बकचोदी कर रहे थे ये लोग। हाँ, तो अभी वही है ना कि ठीक है, so this is going to be our lineup. Shreyas, good news is that Shreyas Iyer is now 100% fit, and KL has picked up a new niggle again, and he managed to do something again. So KL is doubtful for the first match, and He'll come back strongly against तो Nepal. तो शाहिन शाह अफरीदी को उसको फेस नहीं करना, ना उसको नसीम ब्रैडमैन शाह को फेस करना, सो इज रियली लकी फॉर। या नसीम शाह तो 2 बार उसको आउट कर चुका है लास्ट ईयर, और सेम शाहिन शाह तो फैशन में, सेम KL फैशन में। KL इज लाइक कमबैक मैच खेलूंगा तो नेपाल के अगेंस्ट ही। और वहां वो सेंचुरी मार ही देगा। पक्का है, वहां तो वो अपने ऐसे से कमाल लाजवाब राहुल वाले शॉट्स दिखाएगा फिर। सेंचुरी नहीं मारेगा, बट हाँ वो 100 अबव स्ट्राइक रेट रखेगा, नंबर 5 पे आके वो खेलेगा, मतलब फिनिशर वाला रोल पूरा प्ले करेगा वहां पे, या सडनली बटलर बन जाएगा। क्योंकि उसमें विराट और शुभमन यही लोग 100 मार देंगे कि नेपाल के अगेंस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है। उसका बैटिंग आएगा नहीं, या नेपाल फिर के KL का लास्ट बैटिंग में। नहीं आनी चाहिए। हाँ बट मुझे तो लग रहा है देखो पाकिस्तान हरा देगी इंडिया को। मैं मुझे भी मैं लग रहा इसी बात पे मैं मुझे मुझे है। बहुत, क्योंकि
पाकिस्तान का यार मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए। अफगानिस्तान कोई अब ऐसा टीम नहीं रहा कि जिसके अगेंस्ट कोई भी 9 विकेट गिर गया, शादाब खान को आप मैनकाइट कर रहे हो, 6 बॉल पे 11 रन है एंड यू आर विनिंग द मैचेस आखिरी विकेट पर। तो यानी कि उनका तो 11 बैट्समैन बैटिंग करता, हारिस रऊफ आता है 11 नंबर पे, ही कैन हिट लॉन्ग सिक्स। नहीं, 11 डाउन में आके कवर ड्राइव मार रहा है यार, ऑलमोस्ट सिक्सेस। या साला साला नसीम ने जो फर्स्ट बाउंड्री मारा था वो एक प्रॉपर बैट्समैन शॉट था यार, वो उस लास्ट ओवर में भी। That's why we call him Bradman. It's नंबर not a 6 से joke. नंबर 11 इनका चाचो और शादाब है, दे आर सच गुड बैटर्स। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान को स्पिनर नहीं है। आई डोंट नो नॉमान अली को क्यों नहीं लेके आ रहे टेस्ट मैच में से यार। Let's see the Pakistan squad. यार लाइक शादाब खान अकेले हैंडल कर रहा है तो उनको नीड क्या है? बांग्लादेश का स्पिन ज्यादा अच्छा है उनसे यार, मतलब इतना बेकार स्पिन है पाकिस्तान का। दैट्स अ बिग शादाब है, प्रॉब्लम फॉर उसामा है, इफ्तिकार है एंड सलमान अली आगा है सलमान आगा भी स्पिन करता है। सलमान तो फ्रॉड लगता है ना, बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। यार नहीं उसने एक सेंचुरी मारा था ना एक्चुअली सलमान इज में गुड बैट्समैन यार, सलमान इज गुड बैट्समैन। टेस्ट मैच में। आई डोंट रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने जो सेंचुरी मारा था ना, फ्रॉम देयर सलमान आगा बिकेम देयर गो टू और पर्सन। उसामा तो मैंने इस सीरीज के पहले सुना भी नहीं था, इसको कहाँ से ले आया यार। भाई तू इससे फॉलो बढ़िया ही नहीं तो करता है क्रिकेट भाई। उसामा बहुत अच्छा किया है सारी ही सीरीज इज में। द प्रोडक्ट ऑफ पीएसएल। उसामा मीर इज भाई प्रोडक्ट तू फ्रॉम पीएसएल। अमेरिका जब से गया है तूने क्रिकेट फॉलो नहीं किया है, तू एडमिट कर ले भाई। क्योंकि भाई सीरियसली तू बोल रहे है यशस्वी जायसवाल गॉट ड्रॉप, भाई ठीक है। I would have played experienced player like Yasir Shah or Nauman Ali अरे instead of यासिर शाह इज नॉट इन देयर लिस्ट नाउ। यासिर शाह का समय अब खत्म हो चुका है। यासिर शाह इज नॉट इन। नॉमान अली को वनडे उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। ही प्लेस टेस्ट मैच फॉर देम। मैं पाकिस्तान Yeah. क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ इसलिए आई एम सेइंग नॉमान अली को उन्होंने बहुत वो उनके और भी एक दो बूढ़े बूढ़े प्लेयर थे जो टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। ओडीआई और टी20 में उनका गो टू पर्सन शादाब खान है एंड ही हैंडल्स दैट। उसके अलावा वो क्या नाम है, अब्दुल कादिर का बेटा, वो उस्मान को लाना चाहिए था उस्मान एक्चुअली। कादिर एंड ही इज इनटू एशियन गेम्स स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। एंड उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलियन सीरीज में एक और बॉलर स्टार्ट किया था ना, जो बॉल्ड है, बहुत अच्छा स्पिन करता है, वो भी बहुत एग्रेसिव है। साजिद वो सिर्फ टेस्ट में है। आज भी सिर्फ टेस्ट में ट्राई किया उन्होंने। और वो भी टेस्ट मैच है। मैं बोलता रहा हूँ इनका गो टू पर्सन स्पिन शादाब खान है। एंड वेरी गुड थिंग इज अबाउट शादाब खान कि वो बैटिंग बहुत अच्छा करता है। वो अपने आप को ऑलराउंडर बना चुका है। उसको सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन कहीं पर भी भेजो। और उस दिन भी मैच शादाब खान ने निकाल के पाकिस्तान को प्लेट में पकड़ा दिया था। नहीं, शादाब का कैलिबर तो बहुत अच्छा है, उसने नौके को 3 छक्के मारे थे ओवर में T20 वर्ल्ड also कप he's a में। very good leader यार, टीम में He's vice captain. अगर रिजवान इज नॉट वाइस कैप्टन, शादाब खान इज वाइस is कैप्टन ऑफ is the पाकिस्तान। top 5 player to watch in the World Cup. He's that good. He's एग्जैक्टली really good. इन इंडिया कंडीशन शादाब खान एंड उस मजा आता है यार बॉलिंग। अपार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान शादाब खान का बॉलिंग देखना वेरी कंट्रोल बॉलिंग। I am going to make another prediction for Asia Cup and World Cup. Imamul Haq will be in the top 5 top scorers. Very Imamul Haq, consistent. I am quite sure. Matlab, that guy has the perfect mentality for an ODI innings. He has the perfect mix of attack and defense का perfect balance है उसके पास। मुझे लगता है इमामुल हक will be very very good. And मैं उस दिन वो मल्टीप्लाई करके देख रहा था स्ट्राइक रेट एंड एवरेज, तो उसमें भी पाकिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे, और मैंने कट ऑफ भी रखा था कि मिनिमम 10 मैचेस, उसमें इमाम और बाबर 2 बैट्समैन थे पाकिस्तान के जो आए थे, मतलब कि उस लिस्ट में। तो मुझे बाबर लगता के है फॉर्म को पता नहीं क्या हो गया है, he doesn't look like he'll score 100। ऐसा लगता है वो भी कोहली को ज्यादा ही फॉलो करता है, उसका वो फेज आ चुका है when he can only score a 50। नहीं, बाबर is very good ODI batsman. I don't like whether he has won oh Pakistan my with 10 god, wickets or Akash bhai, you are saying, you are praising नहीं Babar. I am but so Rakesh bhai, shocked. you have to agree he has become very tentative early For in his ODI, innings. Early in his ODI innings, is really good sharp. batsman. In ODI, I call him Goban Azam, not for ODI, but in ODI because he can play longer innings in ODI. नहीं, but 50 he looked very tentative early in the innings. यार इनमें ना सबसे बड़ा अगर फ्लॉ है ना, अगर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में, तो वो रिजवान है इन ओडीआई। रिजवान डजंट इन देयर जो कैलिबर है, सिनेरियो कह लो ना, रिजवान इज नॉट अ 50 ओवर प्लेयर, नाइदर इज अ टेस्ट टीम प्लेयर। रिजवान इज प्योर टी20 प्लेयर और वो ये यहाँ पे नहीं फिट बैठता। यहाँ पर इनके लिए सरफराज अहमद बहुत अच्छा पॉइंट था, बट दे आर जो
पाकिस्तान क्रिकेट में भी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप चलता है ना, बाबर रिजवान की दोस्ती, वो यहाँ पर दिखती है। रिजवान इज नॉट फिट फॉर, वो खेल दे सकता है बट ही इज ए T20 प्लेयर और ओपनिंग स्लॉट पे वहां पे खेलता है। उसने कोई भी ओडीआई मैचेस में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं, यू कैन सी हिज एवरेज एंड एवरीथिंग फॉर या रिजवान। फ्रेंडशिप में तो हमको पता ही है, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में जब सरफराज खेला था तो बाबर वाज काइंड ऑफ अनहैप्पी, और एक टाइम पे बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था, ही केम टू द फील्ड, ऐसा फील्डिंग करने आया था सब्स्टिट्यूट फील्डर का, और उसको कैप्टन बना दिया था, व्हिच वाज अगेंस्ट द राइट रूल्स। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो पीसीसीआई में चीजें चलती है ना, सो पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट फार फ्रॉम देयर। वहां वहां इंडियन क्रिकेट से भी वो 2 लेवल ऊपर है, बट स्टिल कि उनकी टीम अगर जीत रही है, उनका बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है यार। इफ एनीवन सी, मैं उनके बॉलिंग लाइनअप को सही में बहुत मानता हूँ। विराट कोहली हैज डन एक्सेप्शनल जॉब बाय हिटिंग देम ऑल, लेकिन इफ यू सी इंडियन ओपनर्स, शाहिन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल और उनके पैर लिटरली कांपते हैं वहां पर। नहीं, बट अगेन लास्ट वर्ल्ड कप में शाहीन इंजर्ड लाइनअप था, दे अभी हैव फुल्ली 3 गुड फिट है। पेसर्स, दे हैव सदा, बट उनके जो 10 ओवर्स है ना वो डिफिकल्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो वहां पे टीम्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। ओके, नहीं इनके पास तो देख एक्चुअली 6-7 बॉलर्स हैं, मतलब दे कैन मिक्स एंड मैच एंड Yeah, at least they have some all-rounders, man. We don't Even even if have Fakar Zaman can also bowl, man. He is also हाँ, left arm ये spinner for तैयब them. ताहिर भी एक स्क्वाड में है। तैयब ताहिर आई एम नॉट श्योर कि Tayyab Tahir just did Cricket, वो merging squad वाला मैच। Tayyab Tahir हाँ, was in that, और जो इंडिया को फाइनल में जो अच्छा डुबकी लगाया था, Tayyab Tahir was an important person there. और ये I have मोहम्मद वसीम भी खेल सकता है यार, इसको भी लाना चाहिए मोहम्मद वसीम को। actually उसके मोहम्मद लिए जगह नवाज, नहीं। अरे नवाज क्यों नहीं खेल रहा है? नवाज इज नवाज is आल्सो a देयर। brilliant man. लास्ट वर्ल्ड कप में इतना अनलकी रहा नवाज और he- मुझे लगता है नवाज और उसामा में एक चॉइस माइट भी हो सकता है। नवाज is a very good player, I think. नवाज इज नवाज मैच विनर फॉर देम यार, कम ऑन, तू मेरा मैच विनर है। बस अश्विन को वाइड नहीं डालना चाहिए था उसको, बाकी वो ठीक है, मैच विनर है। Shikhar, one thing I want to predict ki in the only weakness I see in this Pakistan lineup where they lose these games is Rizwan and Iftikhar, man. हाँ, The way they Dot can't hit balls. the middle overs. It will be pressurized to the batsman who is in form on a non-striker, man. If these Even two play the similar kind of balls how they did in the last game. एक्चुअली दोनों स्लो they खेलते हैं, थोड़ा स्टार्ट स्लो करते हैं। एक्चुअली इफ्तिकार और रिजवान का थोड़ा बहुत स्टाइल, इफ यू सी इट मैचेस विद मिसबाउल हक गेम्स। यस यस मिसबाउल का गेम बिल्कुल इसी तरह का चलता था। सो इफ्तिकार इज फिर भी बेटर देन रिजवान। इफ्तिकार कैन बोल आल्सो, बट रिजवान का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस स्क्वाड में काम क्या है। मैं सरफराज अहमद वाज फार बेटर देन हिम इन ओडीआई सेटअप। Yeah, ओडीआई man. Better ODI ही इज batsman. नॉट इवन इन द स्क्वाड क्या? नहीं, ही इज नॉट नो, इन द स्क्वाड इज नॉट इन बिकॉज दिस। बैकअप विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है उनका। ओह, सो यार लेट्स अगर सी। फखर का फॉर्म खराब है तो मे बी रिजवान को ओपनिंग पे ट्राई कर सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब रिजवान नहीं, मिडिल वो ऑर्डर में ओपनिंग मुझे लगता कॉम्बिनेशन है। उनका बहुत अच्छा है ना। द ओपनिंग कॉम्बिनेशन दे आर हैविंग इमाम एंड फखर जमान। इमाम आराम से अपना खेल खेल के मस्त रन बनाता है, एंड फखर जमान कैन हिट, तो उनका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सेट है। क्योंकि इसी चक्कर में उनका T20 का उन्होंने अपना ओपनिंग, क्योंकि फखर जमान से वो T20 ओपनिंग नहीं कराते, और बाबर रिजवान को सेट कर दिया ओपनिंग पे, और फखर वरना तो फखर का परफॉर्मेंस खराब हो गया, ही वाज ड्रॉप फ्रॉम T20 स्क्वाड। लेकिन ओडीआई में ये रिस्क को ले नहीं सकते, रिजवान फिट नहीं बैठता ओडीआई उसमें। वो खरगोश की तरह उछल उछल के हर समय लेग साइड पे रन बनाना, वो सिर्फ T20 में चलेगा, टेस्ट और ओडीआई में वो चीज नहीं चलेगा। हाँ यार, कीपिंग भी ऐसे ही करता है वो। सरफराज इज मच बेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। Okay, Yeah. guys. So bowling attack, Pakistan is certainly better than India. What would you say? मतलब कि there is no comparison. नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं ही यार, नहीं। आई थिंक इट्स इक्वल बिकॉज़ आवर स्पिनर्स आर मच बेटर। आई स्टिल फील दे हैव अ बिग होल देयर। उसामा ने अभी तक तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं करी है, सो आई डोंट नो व्हाई यू गाइस रेटिंग हिम सो One हाईली। trump card is Kuldeep, man. He should do well. मैन वी हैव कुलदीप, याद है बाबर को क्या बॉल डाला था 19 वर्ल्ड कप में? एक्चुअली The प्रॉब्लम, only thing Kuldeep, yeah, go on, Akash. मैं एक ही चीज बोलूंगा, एंड दैट मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट वहीं पर है। पाकिस्तान इज हैविंग ऑलराउंडर्स
एंड द बैट्समैन हु कैन बोल, जो इंडिया में नहीं है। बस यहीं पर इंडिया में ना उनके 3 फास्ट बॉलर तो प्रीमियम बॉलर्स है, उसके ऊपर उनके पास फखर जमान है, सलमान आगा है, इफ्तिकार है। और इंडिया में देख लो और ना, रोहित नवाज शर्मा, नवाज भी खेल सकते हैं अगर नवाज नवाज खेलेगा। खेलेगा तो वो बॉलिंग करेगा। तो हाँ इंडिया में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ही नहीं कि 4 ओवर चलो रोहित शर्मा, यू कैन डू गिव अस 4 ओवर्स। वो चीज नहीं है इंडिया के पास, एंड दैट क्लोजेस एवरीथिंग हियर राइट नाउ। yeah, Vishnu, what I want to hear from you. It's been long. Yeah, I think Kuldeep, man. Kuldeep will be the trump card. He has to bowl well. He shouldn't be bowling those leg side balls, man. He has to be like a wicket taker, and he has to go. Even though if he goes for runs, he has to bowl those rippers and googlies. And one more thing is, they have to be very strategically. They have to come out, man. If they bat first, they have to. They shouldn't care about the pitch. If the pitch is doing a bit, they have to target 260, 270. If the pitch is flat, 320, 330 target is enough for this Pakistanis. They will be under very pressure in the second innings. I for think sure. 300 is also enough for Pakistan. Last time Yeah, yeah, they very should have true, lost man. that match. They should have lost that match. Yeah, बिकॉज very true. 300 is in. उनकी बैटिंग भी फिर वही एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है, बाबर आजम की, हाउ ही प्लेज। एंड जैसे ही उसका विकेट गिरता है, दे कम इनटू प्रेशर। ये Yeah, अफगानिस्तान में it happened that day. 170 for 1 6, 211 for 6. Yeah, yeah. Exactly. They should never have won that match. वो तो 5 wides and full toss 6 जो Yeah, पड़ that गया Rahman. रहमान के वजह से। हाँ But I have to say another thing. I'm very excited by the schedule. मतलब Asia Cup just World Cup से पहले cannot be better timing. And I think बाकी सब Western countries, I mean not Western, but like foreign दूसरे white countries पे फटी पड़ी होगी कि अगर एशिया कप थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया ना, they will be shit scared. Sides like New Zealand, South Africa. और सबसे Because बड़ी not बात just India, कि Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan can also be dangerous for other sides. So एक्चुअली ये सारा सिनेरियो उनके लिए इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, और सब कॉन्टिनेंट्स टीम बिल्कुल सेम तरीके से जाएंगे। तो यू आर राइट इन दिस पॉइंट। Very true. okay guys, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि I am predicting a Pakistan win. So for reasons I'll tell you, मुझे लगता है इमाम and Babar, they will anchor very well, and they have the firepower with Shadab and Iftikhar. They have that firepower to match a 260, 270 score. They can definitely put up, or they can chase that score. The problem with India will be similar to क्या रिजवान के बारे में जो हम बोल रहे थे, रिजवान और Salman, whether India will play a lot of dot balls. I feel two spinners also, even to suppose you have Usama or Nawaz, or you have someone like Salman also bowling. I think they also have the ability to bowl dot balls to KL Rahul in the middle order. So I'm sure there will be a lot of dot ball pressure. But obviously KL is not there in the first match, so that is advantage to India. But yeah, but overall Jadeja, let's not forget, Jadeja ka strike rate is 59. In the last 18 months, Jadeja's strike rate is 59. He's also another player who plays a lot of dot balls. इसलिए अक्षर should come before Jadeja अगर दोनों खेल रहे हैं तो yeah. So इन that is दोनों another टीम thing. की And I agree with Vishnu. Actually, Akshar Patel should be definitely playing. I'm not sure if he can replace Shami. First of all, Shami should not have been there in the squad. But again, out of the blue, Shami को ले आए कहीं ना कहीं से स्क्वाड में randomly. कुछ भी नहीं किया है उसने, मतलब कि in any World Cup tournaments, but still मतलब 2019 में ठीक है, but I think he should not be playing. Prasidh Krishna or someone else. 2019 में भी उसका हैट्रिक के अलावा कुछ नहीं है अगेंस्ट अफगानिस्तान। Yeah, done. As Shika says, he doesn't give wickets, he only gives oops and ahs. वही करेगा वो भी इस वर्ल्ड कप में। और आई हैव ओनली होप फ्रॉम सिराज। बुमराह से भी मेरा होप नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो आयरलैंड बैटिंग के अगेंस्ट ठीक है, 4 ओवर डालना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई हैव होप्स फ्रॉम सिराज। आई थिंक सिराज कैन बी, बट मुझे लगता है बाबर विल लव सिराज, मतलब कि बाबर विल जस्ट टाइम एवरीथिंग। सिराज का जो पेस आएगा ना,
वो बाबर Pace will like will that, go. and I think Imam and वो Babar will वो score good. बैटल बहुत अच्छा होगा, वो बैटल बहुत अच्छा होगा, बाबर वर्सेस सिराज। वो एग्रेशन, सिराज अपने जबरदस्ती के आंख वाँख दिखाएगा और बाबर, Yeah, तो वो सिराज का aggression बहुत और, अच्छा। और अगर उसने गलती से बाबर को आउट कर दिया तो फिर वो पूरे अहमदाबाद और हेमंड, ये सॉरी कैंडी में वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएगा, उसको कुछ नहीं है, पवेलियन वो में छोड़ रोनाल्डो करके का आएगा। celebration करता है। Yeah. तो बाबर मुझे अहमदाबाद मुझे में ऐसा लगता है कि इंडिया हाँ पाकिस्तान का 1-1 होगा, जो एक मैच सेकंड को और एक नाइन्थ को भी ऑलमोस्ट पक्का है, क्योंकि दे बोथ विल हाँ, क्वालिफाई टू द नेक्स्ट स्टेज। तो मुझे लग रहा है एक मैच पाकिस्तान जीतेगा, एक इंडिया, और अगर इफ दे रीच फाइनल्स तो देन आई डोंट नो, बट पहले तो एक एक हो जाएगा ऐसा लगता है। एंड आई वाज आल्सो रिमेम्बरिंग 2019 में हमारे पास वो लग्जरी थी कि टॉप 3 में से एक या दो बंदे सेंचुरी मारते थे हमेशा। इस बार अगेन दिस इज अ चांस फॉर दीस थ्री टू कम बैक इन फॉर्म। दे आर गुड प्लेयर्स, रोहित, गिल एंड विराट। अगर ये लोग हर मैच में से एक 100 बनाने लग जाएगा ना, तो इंडिया का सेट हो जाएगा। यार रोहित का भी ड्यू है बहुत दिन से, एक अच्छा नहीं, नॉक my बहुत। hope is totally on Shreyas Iyer. I think मतलब Shreyas Iyer is the best ODI player uh, of India in last 3-4 years. That You is a see very big call. any stats इन or any सब record कॉन्टिनेंट कंडीशन, इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन ही इज वेरी गुड। सो in तो उसके सब बाद कॉन्टिनेंट में ही हो रहा है ना अभी तो, सारा हाँ, मैच सब मतलब वही मैं कॉन्टिनेंट बोल में रहा ही हूँ, है। सब हाँ, कॉन्टिनेंट कंडीशन में तो इज उसका फैबुलस। एक ही वीकनेस है बाउंसर, जो उसको डालेगा बाउंसर, हारिस रऊफ, वो श्रेयस अय्यर को बाउंसर डालेगा। पता नहीं कितना मैच फिटनेस भी है यार इसका, हाँ यार हाँ, देखना पड़ेगा। बट दे हैव प्रैक्टिस्ड लॉट ऑफ मैच इन एनसी। अभी जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, ये लोग काफी श्रेयस प्रैक्टिस अय्यर भी। it seems scored 199 in some practice match। 199 मारा है उसने कोई प्रैक्टिस मैच में। तो पता नहीं अभी, लेट्स सी। केएल तो ऑलरेडी अभी इंजर्ड हो गया है, तो आई ये डोंट तो नो। Hardik has 200 मारा to, होगा। also Hardik has to play in this हाँ, games man, ओ मैन, big दैट time. इज द Otherwise, बिगेस्ट वीकनेस ऑफ इंडियन स्क्वाड, हार्दिक पांड्या का बैटिंग। दैट इज द यार उसका स्लो बैटिंग देखा नहीं उसका, जाता, उसको हिटिंग रोल दे दो बस 45 ओवर्स के बाद और भी भाई उसका वो। नहीं, और उसका captaincy game के एटीट्यूड, बाद साले को उसका उसका बैटिंग से ज्यादा मेरे को उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। मतलब वो पता नहीं क्या, किस 9 स्टार पे रहता है, मतलब कहाँ रहता है समझ नहीं आता। मतलब वो पता ही नहीं क्या अपने आप को समझता है। वो एटीट्यूड अगर सही है देन ही इज गुड। आई एम रियली स्केर्ड नाउ विद केएल, हार्दिक, जडेजा। मतलब अगर ये तीनों मिलके डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर दिए ना, इंडिया नंबर 5, 6 एंड 7, तो भाई इनके डॉट बॉल प्रोवेस I का कोई think मुकाबला Jadeja नहीं है। मतलब ये लोग Shikhar. किंग्स हैं डॉट बॉल्स के, दे आर अनडिस्प्यूटेड किंग्स ऑफ डॉट बॉल्स। Hmm. But can Surya Kumar Yadav play? Actually, I have a genuine question. Will he I play as wish a? he could have been a keeper man. या Yeah, एक्चुअली man. ये He could पूरा have been संघर्ष excellent. खेल था केएल का। केएल बहुत स्मार्ट है साला, कीपिंग थोड़ा बहुत कर लेता है। तो केएल another एक्चुअली interesting thing अपना is करियर में भी Asia कीपिंग Cup, सीख गया था। सो guys, another interesting thing is एशिया कप पाकिस्तान में स्टार्ट होगा। लाइक जो इनिशियल मैचेस हैं बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, सब पाकिस्तान में है। तो फर्स्ट दैट मैच इज ऑल्सो मुल्तान वेरी में। इंटरेस्टिंग एलिमेंट। पाकिस्तान में बहुत टाइम के बाद कोई मल्टी टीम्स जा रही है खेलने, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट मैच पाकिस्तान नेपाल मुल्तान में, देन पाकिस्तान हैज टू ट्रैवल नेक्स्ट डे एंड श्रीलंका, फेस इंडिया आफ्टर 1 day in कैंडी। ओह वाओ। एंड अफगानिस्तान के फर्स्ट 3 पिक्चर्स लाहौर में है, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद दे विल ट्रैवल टू श्रीलंका। सुपर फोर्स तो सारे ही श्रीलंका में, एक्सेप्ट फॉर वन सारे टीम। श्रीलंका में, हाँ, श्रीलंका में। ठीक है guys, I think it was a good catch up and really fun to talk about the India Pakistan encounter। देखते हैं, like we talked about lot of elements की, एक तो डॉट बॉल फैक्टर ऑफ इंडिया 5, 6, 7 प्लस द डॉट बॉल फैक्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान नंबर 4 and 5 वेरी and सिमिलर। सलमान इफ्तिकार, केएल, हार्दिक, जडेजा man. and the bowling strength of India versus Pakistan। और प्रतीक ने जो पॉइंट बोला कि he feels कि स्पिनर पाकिस्तान इज लाइट ऑन स्पिनर्स, और वहीं पे आकाश भाई बोल रहे हैं कि नहीं, स्पिनर्स एक्चुअली उनके ऑलराउंडर्स हैं एंड दे विल हेल्प आउट ऑन द बैटिंग। सो ये एक कॉन्ट्ररी पॉइंट है एक तरह से, मतलब कि आप यार दोनों का एक और पॉइंट अभी जस्ट माइंड में आया कि विल अदर टीम्स बी एट अ एडवांटेज सिचुएशन, बिकॉज पाकिस्तानी कंडीशंस आर मच क्लोजर देन इंडिया, और वहां पे 350 के स्कोर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मे बी दिस विल एन एडवांटेज फॉर अदर टीम्स प्लेइंग इन पाकिस्तान, बट श्रीलंका में पिचेस विल बी ऑन द स्लोअर साइड।
पाकिस्तान में तो ज्यादातर फ्लैट पिचेस मिलेंगे इंडिया को so तो खेलना ही नहीं है पाकिस्तान में, तो it doesn't matter what happens in Pakistan. Yeah. For us, like Indian fans, it doesn't matter because we are playing every match in Sri Lanka only. Sri Lanka, yeah. And I We have also to want to target remind folks, 270, 280 kind of target totals only. will be enough in Colombo and Yeah, yes. I also want to remind folks, same day, Asia Cup ke same day, Australia is starting a series Traveling to against South South Africa, ODI, and New Zealand is starting against England in England. So Yeah. everyone is starting with the preparation just 1 month before the World Cup. Crazy, crazy. We'll see that, and Devold Brevis has been included in the South Africa squad for the first Yeah. time. So that Maybe, is also maybe. another interesting thing. Maybe.